Today I want to talk to you about a very, very powerful topic. आज चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही समझशाली विषय पर। And today I want to talk to you about the spiritual significance of thorns in the Bible. और आत्मिक जो खासियत होती है कांटों के बारे में बाइबल में, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। Let's go to Genesis chapter 3, please. चले जाएंगे इस समय उत्पत्ति का 3रा अध्याय। Genesis chapter 3, उत्पत्ति का 3रा अध्याय। and let's read from verses 17 and 18. और आइए पढ़ेंगे उसके 17वें और 18वें वचन में। It says, Then to Adam God said, और आदम से परमेश्वर ने कहा, Because क्योंकि you have heeded the voice of your wife, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी and have eaten from the tree और उस वृक्ष में से फल खाया है, which I have commanded you, saying, You shall not eat of it. जिसके विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना। Cursed is the ground for your sake. इसलिए जमीन धरती जो है तेरे कारण शापित Now है। notice over here, God didn't curse Adam and Eve. गौर करें कि परमेश्वर ने यहाँ पर आदम और हव्वा पर शाप नहीं बोला। As a father, as much as what we have done, God did not curse his children. देखिए जितना भी हम करते हैं परमेश्वर जो अपने बच्चों पर शाप नहीं बोलता। And then see what it और says. देखिए फिर वचन क्या कहता Cursed is the ground for your sake. है, और भूमि तेरे कारण शापित है। In toil. और देखिए दुख पसीने के साथ, In toil. दुख और तकलीफ के साथ, Dukh, taklif, pasine ke saath. Everyone say, in toil. You shall eat of it all the days of your life. तू उसकी उपज अपने जीवन भर खाया करेगा। Give me verse 18 in Amplified. Okay, let's read 18. But thorns and thistles the ground shall bring forth for you, लेकिन भूमि जो है तेरे लिए कांटे और कटीली झाड़ियां उगाएंगी and you shall eat the herb of the field. और तू खेत की उपज खाएगा। Now give me the same thing in the Amplified. Amplified Bible, if you can. Quickly. Everyone say thorns and thistles. The ground shall bring. What it shall bring? The ground shall bring. Let's go. Give me 17, please. Yes. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Now let's amplify it bit. It says the ground is under a curse. भूमि जो शाप के अधीन है। Why? क्यों? Because of you. तुम्हारी वजह से। In sorrow and toil. So you see, तो आप देखते the हैं word sorrow is introduced in the original Hebrew. और देखिए यहाँ पर दुख जो है यहाँ पे परिचय कराया गया है So- या इब्रानी भाषा में। When you're working, तो जब आप काम करते हैं many of you say, Oh, I'm working. और देखिए बहुत सारे कहते हैं ओह मैं काम Why करता have हूँ, to go through so much of pain? क्यों मुझे इतने सारे दर्द में से जाना पड़ता I है। am working honestly. मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, I'm working hard. मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। Sorrow and toil. और यहाँ पर देखिए पसीना देखिए और दुख। Shall you eat of it all the days of your life? How many of you following me right now? जीवन भर तो उसकी उपज All the days of your खाएगा। life. And then verse 18. Now here's what it is so beautiful in the Amplified. और देखिए एम्पलीफाइड संस्करण में देखिए Thorns also and thistles shall it bring for you, and you shall eat the plants of the field. Now listen, everyone. The curse brought the thorns in people's lives. और हम देखते हैं कि शाप ने जो है लोगों की जिंदगी में कांटों को ले आया। So you see, आप right देखते हैं। in the third chapter of the Bible, और सीधे हम देखते हैं बाइबल में कि 3रे अध्याय में what Adam and Eve did, it brought a curse on the ground. जो आदम और हव्वा ने किया था इसकी वजह से भूमि पर शाप आया। And thorns became a symbol of hardship, of struggle, of sorrow. और फिर कांटा जो है वो निशानी बन जाते, चिन्ह बन जाता है कड़ी देखिए एकदम संघर्ष करने का, पसीना बहाने का, दुख तकलीफों का। And now humanity has to work hard. और इसके बाद हम देखते हैं कि इंसानों को जो है एकदम कड़ी मेहनत पसीना बहाने की जरूरत पड़ी है। Yes, in toil, in sweat of their brow, in so much of sorrow. और इतना ज्यादा दुख तकलीफ पसीना उनको लगातार बहाना पड़ रहा है। How many of you listening right now? तो सुन रहे हैं। You see, आप देखते हैं। in their disobedience, उनके आज्ञा उल्लंघन की the वजह से curse of the thorn came into their life. और कांटों का शाप उनकी जिंदगी में आ गया। How many of you following me? ये तो समझ रहे कलीसिया, I want you to understand this. चाहते आप समझें। Many people say, Pastor, और देखिए बहुत सारे कहते हैं पासवान जी work is so tough. और काम करना नौकरी बहुत मुश्किल हो गई। How many of you listening right now? That's why people are finding easy way out. और इसी वजह से लोग जो है आसान रास्ता ढूंढते हैं। Hello. And people are just waiting. बोला, people like easy way out. तो बोले तू 10,000 रुपए डाल हर महीना, तेरे को मैं 30% देगा। और सब करोड़ों लेके भाग जाते पब्लिक. Because you see, people cannot bear it. क्योंकि आप देखते हैं कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। Hello, are you there right now? So many scams. और इतने ज्यादा देखिए घोटाला हो रहा है। Nobody is bringing out. There is no justice. कोई भी इंसाफ नहीं आ रहा। Hello, are you there right now? बेचारे गरीब घूम रहे हैं, बोले क्या हुआ सर? बोले चालू है. क्या चालू है? तेरा माल लेके तू निकल गया है. I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया, This is how people are suffering. इसी तरह से लोग देखिए दुख तकलीफ झेलते हैं। And you have to understand this is a direct result of sin. और आपको समझने की जरूरत है कि ये सीधे पाप का ही परिणाम है। So the first thing, तो पहली चीज, the curse
the thorn is a symbol of curse. श्राप, ये कांटा जो है, देखिए वो श्राप की निशानी है, चिन्ह Write है। it down. If you see thorns in your dreams, write it down. देखिए, अगर आप अपने सपनों में कांटों को देखते हैं, It's a very dangerous thing. बहुत ही खतरनाक चीज है। That means इसका the मतलब- enemy is trying to bring sorrow in your life. शत्रु जो है कोशिश कर रहा है आपकी जिंदगी में दुख तकलीफों को लाने की। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं इस वक्त? So you need to fast and pray. तो आपको उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है। Are you following me, church? आप What I'm समझ रहे saying? कलीसिया? Yes. Listen very, very सुनिए carefully. बड़े ध्यान से। Numbers 33 and 55. गिनती की पुस्तक 33वां अध्याय, Look at this now. देखिए वहां। Now God is speaking to the Israelites who have entered their new land. और यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों से land. बोल रहा है जो कि नए देश में उन्होंने कदम रखा है, प्रतिज्ञा के देश में। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं। Now people have come into their promised land. और देखिए लोग अब अपने प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए हैं। Now see what it says. देखिए वचन But कहता if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, it shall be that whom you let remain shall be irritants in your eyes and thorns in your side. और देखिए वचन में ऐसा लिखा, मगर अगर तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और कीले ठहरेंगे। I like that word. Pastor, read it again. मगर अगर तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से नहीं निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और कीले ठहरेंगे। आंखों में कांटे और कीले. Remember these two things, huh? So if you see nails also, तो अगर आप देखते हैं कीलों को भी, it is a very dangerous sign of witchcraft against you. तो देखिए ये आपके खिलाफ में किया गया जादू टोना का बहुत ही खतरनाक चिन्ह है। Today every evil nails will come out of your body, of your house, in the name of Jesus. आज हर एक कीले जो है आपके घर में से निकल दिए जाएंगे यीशु के नाम में। So you see, church, आप देखते हैं कलीसिया, and they shall harass you in the land where you dwell. और जहां तुम बसोगे वहां वे तुम्हें सताएंगे। And what God is saying over here, परमेश्वर क्या कह रहा है? if you tolerate sin and compromise, I'm dealing with this verse first, परमेश्वर यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि अगर तुम पाप और समझौते से निपटोगे it will become a thorn for you and bring unnecessary setbacks and suffering in your life. तो ये तुम्हारे लिए कांटा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी मुश्किलातों को और तकलीफों को ले आएंगी। How many of you know? Write it down. क्यों समझ लीजिए। People can become thorns in your side. और देखिए लोग जो हैं वो भी देखिए आपके लिए कांटे बन सकते हैं। They were once flowers. और देखिए एक बार तो वे फूल हुआ करते थे। कितने लोग सुन रहे हैं? जाने दो यार, इधर पब्लिक बहुत दिनों, कल छुट्टी है क्या? हाँ? इसलिए तुम लोग छुट्टी के मूड में लग रहे हो। हाँ? एक बार वो फूल थे, हमारे सर पे पहन के घूमते थे, अभी वही लोग कांटे बन गए हैं। You see, God is saying, देखिए परमेश्वर कह रहा है there will be thorns in your sides. तुम्हारे पंजरों में जो है वो कांटे बनेंगे। Thorns, people can be thorns. और लोग जो है कांटे बन सकते हैं। People can become thorns. लोग कांटे बन सकते हैं। Because somewhere you compromised. क्योंकि कहीं तो आपने समझौता किया। Somewhere you did not deal rightly with the word of God. क्योंकि कहीं तो आपने परमेश्वर के वचन के साथ सही तरह से निपटा नहीं है। How many of you are listening right now? ये तो समझ रहे हैं। The Bible says, बाइबल कहती है the strange woman. Don't look at me like that. The strange woman. अजनबी या विचित्र महिला, Don't let me go there now. Strange woman. First, she's like honey, और देखिए अजनबी महिला, विचित्र महिला जो है पहले तो एकदम मधु जैसे, शहद जैसी लगती है, but then becomes thorns. फिर उसके बाद वो कांटा बन जाएगी। You didn't understand. नहीं समझे आप? How many understanding this, church? Always the outside woman looks full of honey and curds, you know. हमेशा बाहर दूसरी जो है स्त्रियां जो है एकदम शहद जैसी मधु एकदम मीठी दिखती हैं। It can be your own spouse. ये देखिए आपका कोई जोड़ीदार हो सकता बोले प्रभु ये कांटा कब जाएगा? No, really. अरे मेरा ईमेल पढ़ो। प्रभु ब्रदर मैं बढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे जीवन में कांटा है। उधर मैं लिखता हूँ कौन है वो? कभी कभी बच्चे कांटे तुम्हारे बच्चे नहीं है सर, तुम ही बड़ा कांटा हो। बच्चे कभी कांटे नहीं हो सकते, बच्चे फल होते हैं। बच्चे कांटे कैसे हो सकते हैं? बच्चे बाइबल में लिखा है वो फल है। Praise the Lord, is a fruit. वो एक फल है। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। I want you to understand this. So when you introduce compromise in your life, now compromise is not something like adultery or something. Of course, you can compromise it, but it may be certain small things in your life. और देखिए समझौता कर लेने का मतलब देखिए व्यभिचार जैसी ही बात नहीं, हाँ वो भी इसमें शामिल होता है, लेकिन ये मान लो आपके जिंदगी में छोटी सी कोई चीज हो जाए, As you grow more closer to the Lord, लेकिन जैसे आप प्रभु के और ज्यादा करीब आते हैं, you will be
under more scrutiny from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की ओर से और ज्यादा संवेदनशीलता में आपको आना पड़ेगा. So you see, the more closer you are to the Lord, you will be more scrutinized. And little compromise. That's why the Bible says, little leaven leavens the whole lump. और देखिए ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा खमीर जो है पूरे आटे को बिगाड़ देता है. How many of you following me right now? Are you listening? आप सुन रहे कलीसिया? Yes. You see, sometimes we have this habit of flirting with people. कभी कभी देखिए लोगों के साथ देखिए फ्लर्ट करने का देखिए इस तरह का आदत होता है. Hello, are you following me right now? I'm not having a relationship, but I'm just flirting in the office, Hello. Yeah, you're just flirting. आप बस फ्लर्ट कर रहे हैं. I'm not having a. You're a child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं. You see, that door which you have opened, देखिए वो दरवाजा जो खोला है आप, that double talk. And you start deleting those WhatsApp messages और उन so that your wife, your partner is not reading. ताकि आप And you have a parallel hidden. जाने दो यार, अभी ये सब बोलना नहीं चाहिए, pastor. You have a WhatsApp, secret WhatsApp which is under lock. That password has 16 characters. And your bichari wife, she does not remember the 4-letter word. And you have 16 characters. etc., dot, dash, bash. Hello? बेचारी बीवी कहाँ ढूंढेगी यार? कोई बीवी लोग भी स्मार्ट होते हैं. They have 32 characters. आजकल की नौजवान स्त्रियां बाबा, they are solid, hallelujah. And the youth you must see now. और जवान लोगों को देखें आप. मम्मा मत बोल. How many of you following me right now? So you see, church, आप देखते कलीसिया, you may not sleep with that person, you may not do something, but that attitude of flirting, attitude, अरे चल यार, hey. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? And when you're caught, और जब आप पकड़े जाते हैं, that person becomes your brother or sister. तो वो व्यक्ति जो आपकी बहन या भाई हो जाते हैं. Jesus, Pastor, you're reading my mail. Sister in Christ, I would like to give you a boot in the Lord. Hallelujah. Don't try these stunts. ये सारे. So you see, sin enters. तो देखिए पाप अंदर आता है. I am alone, Pastor. मैं अकेला हूँ पासवान जी. So, if you're alone, so be alone with God. परमेश्वर के साथ अकेले रहें. You see, Jesus was alone with a woman. आप देखते यीशु उस महिला के साथ अकेले थे वहाँ. But you see how he's dealing with the woman. लेकिन My God, I tell you, किस तरह का बता forget about that Samaritan woman. Just खाली पढ़ो, सोचो, एक स्त्री अकेली है, कोई नहीं है. यीशु कैसा बात कर रहा है उससे. और सब आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं. वो ब्यूटीफुल हो गई. She must be a stunner. आदमी लोग पागल नहीं है. अरे जाओ यार, तुम लोग क्या हो गया तुम लोग आज यार? तुम लोग लगता है समरिटन वेल पे पहुंच गए तुम लोग. तुम लोग तो वेल पे पहुंच गए यार. Come back. वापस आओ. You see, Jesus, आप देखते यीशु how he dealt with that woman. कैसे उस महिला से उन्होंने बर्ताव किया. How he dealt with that woman. कैसा व्यवहार किया उस My महिला से. God. Just forget about what Jesus said. Just the character of Jesus. भूल जाए जो यीशु ने वहाँ पे कहा. देखिए यीशु. We need to give a big hand to the Lord. Hallelujah. प्रभु जोर डाल के भेंट चढ़ाने की जरूरत है. You see, आप देखते हैं thorns and thistles. कांटे और कटीली झाड़ियाँ. God is said to them, बाबा ये नहीं चलेगा. परमेश्वर से कहा कि देखो ये नहीं चलेगा. प्रभु मैं अकेला हूँ प्रभु, समझता प्रभु, मैं मेरे बीवी बच्चों से दूर हूँ प्रभु. बोले बेटा तू नहीं हटेगा ना तो वही चीज तेरे लिए कांटा बनेगी. कांटा बनेगी तेरे आंख में, कांटा बनेगी आंख में, कांटा बनेगी. इसलिए तुझे पवित्र आत्मा के जो विजन दिखाई नहीं देते. Irritants in your eyes. आपकी आंखों में एकदम कांटे. Pastor, I feel so confused. और पास्टर जी मैं बहुत उलझन में लगा. There are things in your eyes. ऐसी चीजें आपकी आंखों में. Who put those things in the eyes? किसने रखा उस चीज को आपकी आंख में? You. आपने. You compromised. आपने समझौता किया. चलता है यार. When God tells you to give something to the Lord. जब परमेश्वर आपसे कहता है कुछ देने के लिए प्रभु को. बताऊं क्या? बुरा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ताकि आप मुझे कुछ दो. सर मेरा प्रभु मालिक है. One day. एक दिन. Listen to this. सुनिए. One fellow, he came to the service. एक व्यक्ति सभा में आया. He brought some big file. बड़ी सी एक फाइल लेकर आया. Some file.
कुछ फाइल I thought he brought some rocks, you know. Heavy, man. एकदम भारी था And he had put that thing in a nice box. और अच्छे बॉक्स Pastor, can you pray? He gave me, my hands went down like that. He said, Pastor, these are properties. कहने लगे कि ये सब संपत्तियां हैं Can you pray? क्या प्रार्थना करेंगे I said, the Lord is saying, when you get it, give it to the Lord's house. I don't want anything. You give directly, put your name. We will put your name over there. Now that fellow's money was released. और उस व्यक्ति का पैसा छूट गया He came, hallelujah. बोले hallelujah. Hallelujah बोला। बोले क्या हो गया भाई? बोले पास्टर, टेस्टिमनी नहीं देता हूँ मैं कि पब्लिक भाग के आई. बोले करोड़ों निकल गए. बोला सही है यार. मैं बोला तेरा वादा भूल गया क्या? हाँ बोला मैं इधर थोड़ा भेजा, उधर थोड़ा भेजा, इधर थोड़ा भेजा, उधर थोड़ा भेजा. How many of you listening right now? I said, where the word came for you? वचन कहाँ से आया था आपके लिए नहीं वो सब लोग है ना. I said, don't worry. I said, my heart is not on your money, but what you speak, you must do. Now here's the thing. अब सुनिए ध्यान से After 3 months, 3 महीनों के बाद there was a reverse case done. उल्टा केस पर A fellow came running. I said, I'm busy. आदमी दौड़ते हुए आए इन्होंने कहा मैं व्यस्त हूँ No, pastor, I'm so. I said, please go and meet somebody. You see, church, अब देखते हैं। compromise is not only big things. समझौता करना कोई बड़ी चीज के जैसे ही नहीं है You are talking to the Lord, sir. आप प्रभु से बोल रहे हैं You are talking to whom? आप किससे बोल रहे हैं You are talking to the Lord. आप प्रभु से बोल रहे हैं Be careful. सावधान रहना छोटी 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 चीजों में तुम ये करते हो. This becomes thorns in your side. और देखिए ये चीज आपकी आंखों में देखिए बन जाता है कांटा Now you may not like this, but that's the truth. आप ये भले पसंद न करें सच्चाई तो यही है Who likes medicine, bitter medicine? और किसे जो कड़वी दवाइयां पसंद होती हैं Nobody. कोई नहीं That's why the people, you know, they put sugar and then the mother pushes it in, you know. इसलिए देखिए उसमें शक्कर How many mothers were? जो है, How many had mothers like that? God bless those mothers. परमेश्वर माओ को आशीष दे अगर बच्चा थूकता ना तो एक थप्पड़ेगा फट. ऐसे माँ आशीर्वादित है. Praise the Lord. आजकल की माँ बाबा नहीं चाहिए तो मत पी, मैं पीती हूँ. पहले की माँ सॉलिड थी. कोई कोई लोग तो शक्कर भी नहीं देते थे, सीधा ऐसा करते तो मुंह में घुसा देते थे अंदर. I have been there. Hallelujah. My mother was, oh my God. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो So people can be thorns. Now तो listen to देखिए लोग this. जो है कांटे हो सकते हैं Now what I'm going to share is important. सुनिए In the spirit world, देखिए आत्मिक जगत में third point, write it down. तीसरा In the मुद्दा spirit world, आत्मिक जगत में these witch doctors, they know this thing. ये तांत्रिक लोग ना जानते हैं इन बातों को They know two things. वे दो चीजों को जानते हैं They know that a thorn is a sign of a curse. वे जानते हैं कि कांटा जो होता है वो श्राप का चिन्ह है And the second thing they know दूसरी चीज जो जानते हैं is the point of contact. और ये संपर्क का भी एक स्तर होता है लिक रे पुता लिक. तू क्या सोचता है ना तू अपोस्टल पॉल का बिछड़ा भाई है. आईने में देख. They know two things दो चीजें जानते which हैं Christians don't know. जो मसीह लोग नहीं जानते Christians don't know that the thorn is a sign of a curse. मसीह लोग नहीं जानते कि कांटा जो होता है वो श्राप का चिन्ह है And they don't know about the point of contact. Everyone say point of contact. और देखिए वे संपर्क में आने का जरिया भी इसे नहीं समझते How many of you following me right now? किसे समझ है Let me give you an example. चलिए उदाहरण देते हैं Point of contact. संपर्क में आने का Like you can take somebody's photograph and pray. देखिए मान लीजिए आप किसी की फोटोग्राफ या तस्वीर लेकर प्रार्थना कर सकते हैं You can bring it and raise it up in the service आप देखिए उसे फोन में लेके देखिए आप सभा में उठा सकते हैं इसे and say, Holy Spirit, touch this man. और कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा इस व्यक्ति को छू ले And pa, that Holy Spirit will touch that man. पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छुएगा How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I said, how many of you listening right मुझे कितने सुन now? रहे हैं? Point of contact. संपर्क में आने का जरिया You pray over the property paper, your property is released. आप कागजातों अपने Come on now, संपत्ति hello. कागजात में प्रार्थना करते हैं और संपत्ति छूट जाती है Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? This is called point of contact. और ये कहलाता है संपर्क में आने का जरिया Hello, 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 hello. Yes, Jesus put the mud. और यीशु ने मिट्टी को रखा Come on now. He just put the mud, और मिट्टी को डाला glasses of mud. Come on now. Ray-Ban, you know. He put it like that and he was going in Kurla. और वो व्यक्ति जो है कुरला में ऐसा जा रहा था Jesus did not pray for him. यीशु ने उसके लिए प्रार्थना नहीं And he said, as you wash, की और यीशु ने कहा जैसे तुम जाके धोगे point of contact. संपर्क में आने का जरिया How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस You वक्त? see, in the same way, these people know two things. और इसी तरह से ये लोग जो है दो चीजों को जानते So हैं they take a doll. तो वे गुड़िया को लेते हैं It does not even look like you. वो आपके जैसे दिखती भी नहीं है But they say, this is so and so. लेकिन वो कहते हैं ये वो व्यक्ति है Please open your mouth, otherwise I'll talk to the camera. Now, in the kingdom of darkness, लेकिन अंधकार के राज्य में this represents you. ये आपका प्रतिनिधित्व करती है
बोले this is so and so, don't take your name now. और वो कहते हैं ये वो व्यक्ति है. Now they don't put flowers. Kuchu, kuchu, kuchu. No. What do? वो क्या करते हैं? They put the pins. वो पिन लगाते हैं. Yes. They put the pins. वे पिन लगाते They put the thorns. कांटे लगाते And हैं. suddenly you get up. अरे और अचानक आपको दर्द होता है. इधर ट्यूमर आया है यार. How many understand right now? They put the pins on your womb. This lady will never have a periods properly. और उससे जो गर्भ की और पेट में वो ऐसा कील लगाते हैं और वो कहते हैं इस महिला को सही तरह से कभी मासिक धर्म नहीं होगा. Anything representing you in the kingdom of darkness burn by fire in Jesus name. कोई भी चीज जो अंधकार के राज्य में आपका प्रतिनिधित्व करती है, Say that. Hallelujah. जल जाए यीशु के नाम में. Now you understood what I'm अब saying. आपको समझ में आ गया जो कह रहे हैं. Anything representing me in the kingdom of darkness burn by fire. Open your mouth and pray. कोई भी Open your चीज mouth जो and pray. अंधकार के राज्य में मेरा प्रतिनिधित्व Open करती your है, mouth and pray. आग से जल जाए. चलिए अपना मुख खोलकर प्रार्थना करें. In the name of यीशु Jesus. के नाम में You have to pray. आपको प्रार्थना करने की जरूरत है. Today I'm giving you a homework. आज आपको होमवर्क देते हैं. ऐसी कुछ भी चीज शैतानी राज्य में मेरी प्रतिनिधि कर रही है, हालेलुया, वो जल जाए यीशु के नाम से. प्रार्थना कीजिए सर. चलिए प्रार्थना करेंगे इस वक्त. प्रार्थना कीजिए सर. प्रार्थना कीजिए इस वक्त. इसीलिए तुम्हारे कभी कभी कपड़े गायब हो जाते हैं, इसीलिए तुम्हारे चप्पल गायब हो जाते हैं. ओ कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? हालेलुया. बोलिए हालेलुया. तुम्हारे जगह की मिट्टी उठा कर लेकर जाते हैं. ऐसी कुछ भी चीजें तुम्हारी चीजें जो है तुमसे जुड़ी हुई चीजें शैतानी राज्य में तुम्हारा प्रतिनिधि कर रहे हैं. They are representing you. Let it burn by fire in the name of Jesus. Raise your hands and pray. आग से Your जलकर property भस्म हो will be जाए. released today. आज आपकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी. Tomorrow I'm giving you homework. कल अकेले आपको I'm होमवर्क देते giving हैं. you homework. आपको होमवर्क देते You हैं. will pray this prayer point for half an hour. आप आधे घंटे तक ये प्रार्थना मुद्दे से प्रार्थना करेंगे. And some of you will start vomiting. और आप में से कुछ लोगों को उल्टी आने Some लगेगा. of you will feel, oh, मला काहीतरी होते और कुछ हो लोग ऐसे बोले, दे. "ओ, कुछ तो हो रहा है, मुझे होने पण दीजिए." तू रिलीज होणार आहे उद्या. लेकिन Hallelujah. आप कल छूटने जा रहे हैं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Open your mouth. अपना मुख ये खोलिए. चीज ये लेजी लोगों के लिए नहीं है. ये आलसी लोगों के लिए नहीं पास्टर है. तुम्हीच करा ना, तुम्हाला 500 रुपये, तुझ्या 500 रुपयाचं रॉकेट बनवतो आता. प्रेज ऑन. तू त्याच्यावर बस. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हीच करा ना पास्टर, तुम्हाला देतो 1000 रुपये. 1000 रुपयाचं नोट घे, तुझ्या बायकोला दुसऱ्या नोटवर बसव, तू पण बस आणि जा फिरत. What I tell you, do it. जो आपसे कहते हैं, करो. How many of you listening right now? There are people who will listen, they don't do anything. ऐसे लोग होते हैं जो सुनेंगे लेकिन करेंगे कुछ But नहीं. blessed are those people लेकिन आशीषित है वे who लोग take the word जो वचन को लेते हैं. and say, Father, कहेंगे, पिता, I am a warrior, मैं एक योद्धा I हूँ. am a soldier, मैं एक सैनिक I हूँ. will take that word मैं वचन को लूँगा. and do war in the spirit. और आत्मा में लड़ाई In लड़ूंगा. the mighty name of यीशु Jesus. के समझ नाम में. Anything representing my family members in the kingdom of darkness, burn and catch fire in Jesus' name. कोई भी चीज जो मेरे परिवार के लोगों को अंधकार के राज्य में प्रतिनिधित्व करती है, आग से जल के भस्म हो जाए यीशु के It नाम can में. be a photograph, ये तस्वीर, it can be mud, ये कोई मिट्टी हो सकती it can be a clothing. है, ये कोई कपड़ा हो सकता है. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I said hallelujah. मैंने कहा, हालेलुया. In the name of यीशु Jesus. के नाम में There was one lady. एक महिला थी. She used to come for our meeting. वो हमारी सभा में I'm आया telling करती you थी. the truth. सच्चाई बता रहे हैं आपको. You know, in early days, देखिए पुराने दिनों में people used to dry the clothes outside. और देखिए लोग जो है कपड़े बाहर सुखा करते थे. आजकल हम लोग ड्राई नहीं करते, वॉशिंग मशीन सब करता है. पहला ओल्ड डेज में एक साथ रस्सी लगाते थे और सब लोग पूरा दुनिया का सब लगाते थे. अभी कोई लोग, so this ladies, ये महिला something was stolen which I don't want to share now. कुछ चीजें चुरा ली गई जो बताना नहीं चाहेंगे. But this lady had a revelation. लेकिन इस औरत के पास एक प्रकाशन था. She used to come for a meeting. वो हमारी सभा में आया करती थी. She's in another state now. God bless her. अब वो दूसरे किसी राज्य में. Very परमेश्वर wonderful. आशीष दे उनको. She has 2 children now. अब तो उनके 2 बच्चे भी हैं. And this person, the next door fellow, he was a bachelor. He was after her. और दूसरा व्यक्ति जो बगल वाले कमरे में घर में रहता था, वो कुंवारा था, उसके पीछे लगा हुआ था. Hello, are you newly married couple? But this couple was newly married. That fellow was trying all his stunts. And she told us, और उन्होंने बताए, Pastor, पासवान जी, you know, so and so is the thing. ये चीज. I told her, इन्होंने कहा, in your clothes, अपने कपड़े में everything that I use,
हर एक चीज मैं इस्तेमाल करता I cover it with the blood of हूँ Jesus. यीशु के लहू से ढकती हूँ. My photographs, तस्वीर, my documents, I pray, my social media accounts, सोशल मीडिया, everything I cover it with the blood of सब कुछ Jesus. मैं यीशु के लहू से ढकती हूँ. Now when you pray that, जब आप ऐसे प्रार्थना it करते becomes the property of हैं, Jesus. ये यीशु की संपत्ति बन जाती है. Listen, सुनिए, that man, वो व्यक्ति he took some thing of that lady उस महिला की कुछ चीजों को उसने लिया था and tried to do something. और कुछ करने की कोशिश की. That man वो व्यक्ति, lost his mind उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया and became mad. और पागल हो गया. Not chuk chuk chuk. चुक चुक नहीं. Don't do. I'll send him to you then. भेजो रे बाबा. Don't say that. ऐसा मत बोले. It is not love. They're trying to use you. और देखिए ये प्यार नहीं है, वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं. अरे कोई तुम्हारे हस्बैंड को मार रहा है, तुम्हारी शादी को तोड़ रहा है, क्या क्या कर रहे हो? इतना दया है तो लेके जाओ ना घर में. तुम्हारे घर का पता दे देता हूं मैं, ओला भी भेजता हूं आपके साथ. That person went mad. वो व्यक्ति पागल हो गया. You see, church, आप देखते there is, you have to understand these spiritual realities. आपको इन आत्मिक वास्तविकता को समझने की जरूरत है. Thorns are real. और ये कांटे असलियत में हैं. Thorns are real. कांटे असलियत में हैं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Keep your hand on your chest and say, any evil thorns in my body, come out by fire. अपने सिर पे हाथ रखे और कहे हर एक शैतानी कांटा मेरे शरीर से बाहर. Open your mouth and pray like you mean it right now. चलिए ऐसी प्रार्थना करें जब पूरे दिल से कर रहे हैं. Say it loudly right जोर से now. बोलिए इस वक्त. Right now, those thorns will come out in the name of Jesus. इस वक्त वे कांटे बाहर आएंगे यीशु के The नाम में. thorns are, don't look at my face and say thorns. Say any evil thorns in my body, in my family members, I command you in the name of Jesus, leave, come out in Jesus' name. Come on, और कहे, pray. हाथ रखे कहे कि हर एक कांटा मेरे शरीर से, Pray. मेरे परिवार के लोगों के शरीर में से Pray. बाहर आए यीशु के नाम में. प्रार्थना Pray. करिए, प्रार्थना करिए. Today, in the mighty name of हाँ, यीशु के Jesus, समझ नाम में the Lord is going to do it. प्रभु आपके लिए करने जा The रहा Lord है. is going to do it. प्रभु आपके लिए करने जा रहा है. Somebody give Jesus a shout of praise and say तो hallelujah. यीशु को ताली की भेजना का हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So the third point I told you. तो तीसरा मुद्दा आपको Now बता. please don't come after the meeting and say, हाँ pastor तुम्ही सही बोलले, असं बोलले, तसं बोलले, मला पण thorns दिसतात, तुला काय पण दिसू दे. No discussion. Do it. Don't करिएगा. discuss. Some people they only want to talk. कुछ लोगों को बस चर्चा करना, बात के लिए बात चाहिए उनको. The fourth point. चौथा मुद्दा. Is this blessing you, church? क्या है आपको आशीष पहुंचाने के लिए क्या? Yes, praise God. Now the good news is अच्छी खबर ये है. Jesus, the Father, the Holy Spirit understands these things. And that's why when Jesus was dying on the cross, देखिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझते हैं. और देखिए जब यीशु क्रूस पे मर रहे थे, it was not an accident. और ये कोई एक्सीडेंट जैसा इत्तेफाक से नहीं था. It was a planned sacrifice. और देखिए ये योजनानुसार बनाया गया बलिदान था. Many people say, Jesus, I love Jesus, mellow. No, और sir. सर, ओ हाँ यीशु आया और यीशु It मरा. was a perfect sacrifice. और ये एक सिद्ध बलिदान था. If you understand this, na, अगर आप इसे समझेंगे ना, you will understand the importance. यीशु मसीह के sacrifice का महत्व आप समझोगे. आप यीशु बोले के इतने डिटेल में? हाँ बोले भाई इतने डिटेल में. Go to Matthew 27. चलो जाएंगे मत्ती का 27वां अध्याय. Matthew 27 and verse 29. मत्ती का 27वां अध्याय उसका 29वां वचन. Matthew 27 verse 29. Please open your Bibles. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है. When they had twisted a crown of thorns, और देखिए जब उन्होंने कांटों के मुकुट को गूंथ लिया, they put it on the head of Jesus. यीशु के सिर पर उन्होंने रखा. They put it on the head of Jesus. यीशु के सिर पर उन्होंने रखा. Now listen. अब सुनिए. They were not tiny thorns from the other, दादा के छोटे 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 थोड़ा सा लग गया, no. These were thorns. और ये बड़े भारी कांटे थे. They put it on the head of Jesus. उन्होंने यीशु के सिर पे रखा. And they gave a reed in his hand. उसके हाथ में सरकंडा दिया. A reed is a thistle. Everyone say thistle. It's like a bamboo which grows in the water. और ऐसा एक बाम्बू जो कि पानी में बढ़ता है. Hello. जहाँ पर पानी जमा होता है, देखा है? ऐसे bamboo. That's a thistle. A reed in his hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार. If they knew what Jesus was doing for them, अगर उन्हें यह पता होता कि यीशु उनके लिए क्या कर रहे हैं, they would not bow in mockery, they would bow in worship. तो वे मजाक उपहास करने में, ठट्टा उड़ाने के लिए उन्होंने घुटने नहीं टेके होते, लेकिन आराधना करते हुए घुटने टेके होते. So you see here, they are bowing, but they are mocking. तो आप देखते हैं घुटने तो टेक रहे हैं लेकिन उसको ठट्टे में उड़ा रहे हैं. Bowing the knee and mocking. You can lift your hands and still mock God. और देखिए आप अपने हाथ ऊपर उठाकर भी परमेश्वर का ठट्टा उड़ा सकते हैं. This is powerful. बहुत समझशाली है. So it's not just the actions. तो ये सिर्फ
कार्य नहीं, it's the heart behind the action. लेकिन उस कार्य के पीछे दिल भी लगा हुआ है। You can dance before the Lord and still mock God. आप परमेश्वर के सामने You नाचते can हुए sing देखिए, आप मजाक to उड़ाते the Lord and still mock God. It's the heart behind the action. हैं। कार्य के पीछे दिल जुड़ा हुआ है। Is this helping you, church? क्या आपकी मदद कर रहा है? The heart behind the action. So always check your attitude. तो हमेशा अपने रवैये को जांचें, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? अरे माँ निकालो निकालो फोटो निकालो। ये यीशु तेरा, बोले ऐसे क्यों बैठा है? बोले कैमरा आ रहा है। नहीं तो मैं हाथ नहीं उठाता हूँ। हम नहीं अंडरस्टैंड लेना। क्यों समझ You रहे? see the culture of the church is changing. आप देखते हैं कलीसिया की जो संस्कृति है ना बदल गई है। कि आप लोग तैयार हैं, दुआ तब्स और पब्लिक ताली बजाती है, वाह 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 वाह। कितने लोग सुन रहे हैं? ड्रम बजता है, बड़ा 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 पट पटाश। पब्लिक नीचे होते हैं, या क्या वर्शिप है, हालेलुया। क्या आराधना है। फिर लोगों को एक मन में ऐसा होता है कि यही वर्शिप है यार। हमारे चर्च में तो डब्बा बजता है। हमारे चर्च में क्या डब्बा हो, देखो हिल सॉन्ग में दुआ आता है, क्या क्या आता है ऊपर से नीचे से। नहीं क्या गिटार, उधर क्या बड़े बड़े लंबे बाल हैं और उन लोग इतने हाइट वाले पैर जूते पहनते हैं, वो वर्शिप है। प्रेज द लॉर्ड। और तुम हमारे चर्च में जो हाउस चर्च में होता है, थोड़ा सा बेचारा एक डब्बा बजाता है, कोई एक 3 कॉर्ड बजाता है, वो कॉर्ड भी बराबर से नहीं आता है, ऐसा ऐसा कॉर्ड आवाज आता है। ये क्या है वर्शिप? लेकिन प्रभु बता है कि ये चीज मेरे नाकों में सुगंधित धूप के समान है। Your worship is not in your instruments. Thank God for instruments. Your worship is in your heart. Hallelujah. Raise your hand to God and give Him a praise offering right now. Lift your hand, lift your hand, lift your hand. अपने हाथ उठाएं। Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So when you're doing that family prayer, तो जब आप पारिवारिक प्रार्थना में लगे tell होते हैं, your children अपने बच्चों से कहिएगा to bring out their keyboard, कि अपना कीबोर्ड निकालें, to bring out their guitar, अपने गिटार निकालें and come on, worship the और Lord. सभी मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। Now don't start a prayer meeting. और वहाँ पे प्रार्थना सभा में शुरू कर दो। ये पब्लिक ऐसे ही है. It's your house. ये आपका घर है। Come on, somebody praise the चलिए Lord. कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो। Are you listening, आप church? सुन रहे कलीसिया? वर्शिप के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। इंस्ट्रूमेंट है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं है, हालेलुया। बोले मैं खुद ही इंस्ट्रूमेंट हूं। प्रभु ने कौवे को बनाया और कोयल को भी बनाया। कितने लोग प्रभु के कौवे, हाथ ऊपर करो, करो हाथ ऊपर। बाकी के लोग क्या कोयल हो क्या तुम लोग? नहीं, मैं कौवा नहीं है भाई। So it doesn't matter your voice. फर्क नहीं पड़ता आपकी आवाज Of कैसी है। course we should learn to sing. या यकीन हमें सीखना है But गाने का। true worship, so सच्ची आराधना। it's not just an action, ये सिर्फ कार्य में नहीं है, it's the heart. लेकिन दिल लगा होता है। Somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो। Come on everybody, open your mouth and say hallelujah. सब लोग अपना दिल खोले। Praise Jesus. So you see, आप Jesus carried the cross, the crown of thorns. तो आप देखते हैं यीशु ने जो है कांटों का मुकुट अपने सिर पे उठाया It was not an addition. और ये कोई जोड़ा जाना जैसा नहीं था। Jesus is saying, यीशु कह रहे I cursed the ground. जमीन पर श्राप दिया, I cursed the ground. जमीन को मैंने श्राप दिया। Yes, I remember. मुझे याद है I was there. मैं वहां था। Before Abraham was, I was. Hallelujah. इसमें क्या अब्राहम था, मैं हूँ। And some fellow says, prove to me from chapter number 56 that Jesus said he's God. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बट जो नहीं समझ रहे हैं वो भूल जाए। हालेलुया। बताइए मुझे, अरे तेरे को क्या बताओ भैया, तू सुनेगा तो बताएंगे ना तेरे को। हाँ, बाजू लोग नहीं समझते उसको बोलो, मुझे बताओ यीशु मसीह ने कहाँ बताया कि वो परमेश्वर है? अरे भैया, अब्राहम से पहला मैं था और यहूदी लोगों को पत्थर उठाने को, भैया तेरी अक्ल नहीं चल रही है। जीसस क्लियरली सेड, यीशु ने साफ तौर पे कहा दिया, आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब वो श्राप दे रहा था ग्राउंड को, यीशु मसीह भी वहां पर खड़े थे और उन्हें बता कि वो श्राप को, वो जो कांटे जो भी रिप्रेजेंट करता है श्राप को, वो मेरे सर पर उठाता हूं मैं। आज अगर आप रिसीव कर रहे हैं, आज के बाद आपके पैसों में वो श्राप टूट रहा है।
आज listen, सुनिए। receive कीजिए इस वक्त. ग्रहण करिए इस वक्त। हालेलुया. बोलिए, ऐसा बोलना है आपको, प्रभु तूने मेरा श्राप उठा लिया, आज से मेरे पैसे तेरे हैं और आशीर्वादित है. हालेलुया. बोलिए. बोलिए, प्रभु Begin to तूने मेरा pray, श्राप begin उठा to लिया, आज से pray, मेरे पैसे begin to तेरे और pray. आशीर्वादित है। In the प्रार्थना करिए। mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी नाम में। Today, whether your salary is 10,000, your salary is 50,000, salary is 5 lakhs, that curse breaks today in Jesus' name. आपकी तनख्वाह चाहे 10,000 हो, Yes. 50,000 हो या 5 लाख ही क्यों ना हो, आज वो श्राप टूटता है यीशु के नाम में। I want you to go home and meditate on this verse. May God give you a job who are jobless in Jesus' name. घर Meditate जाकर on इन this वचनों verse. पर आप बंद करें। Meditate और on this जिनके पास verse. नौकरी नहीं है, परमेश्वर को अच्छी नौकरी दे यीशु के May नाम में। stamps come on your visa, stamps come on your passports. May God open doors for you in Jesus' name. स्टैम्प जो है आपकी वीजा पर आए, आपके पासपोर्ट पर आए, परमेश्वर ऐसा काम आपके लिए करे यीशु के नाम What में। a word. Jesus took the thorns. और ये क्या जबरदस्त वचन, यीशु ने कांटों का मुकुट पहना। Why? क्यों? He took the curse. श्राप उसे He उठाया। said, whatever the devil is trying to put against you, और वो कहता है जो कुछ भी शैतान कोशिश करता है आपके खिलाफ में डालने की, I will take it on my head. मैं उसे अपने सिर पर लेता हूँ। तेरे सर पे उठाने की जरूरत नहीं. अभी मैं तेरा बाप हूँ, मैंने सर पे उठा लिया तेरा. Hallelujah. Somebody shout an amen, somebody. चले को तो चिल्ला आमीन इस I वक्त। want you to look to Jesus and say, thank you, Jesus. चाहते कि आप यीशु को देखें और कहें धन्यवाद यीशु। What a beautiful thing, church, that क्या is. खूबसूरत सी चीज है ये। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Say it, everyone. Jesus became my substitute. Jesus wore the crown of thorns so that we could wear the crown of और righteousness. देखिए यीशु ने कांटों का मुकुट पहन लिया ताकि हम धार्मिकता का मुकुट पहने। Through his suffering, you know what happened over here? आप जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ था? Write it down. लिख लीजिए। Poverty broke. गरीबी टूट गई। सर, तुम गरीबी को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो गरीबी का शक्ति जो है तुम्हारे बाप को भी पकड़ कर था, तुम्हारे परदादा को भी पकड़ता. आपको सोचो मत कि आपके बाप दादा जो है ऐसे बैठे रहते थे, बहुत मेहनती थे. कितने लोग सुन रहे हैं? मैं क्या सुबह 8 बजे उठे तो भाई साहब लोग निकले, बोले कहां जा रहे हो? बोले नहीं जाना है. उनको नहीं मालूम, उन लोग कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोले पैसा ही नहीं टिकता है. पॉवर्टी, एवरीवन से पॉवर्टी. सिविल क्या गरीबी? Poverty will break over your life. गरीबी आपके जीवन में से टूट जाएगी। Not through my hands. Today, believe God. All that monies which are stuck up, the Lord is breaking that poverty. सारा पैसा जो अटका पड़ा है, The Lord is releasing it. परमेश्वर पैसे छुड़ा The रहा Lord है। is releasing परमेश्वर it. पैसा छुड़ा रहा है। Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You became a curse for me. आप मेरे लिए श्राप बन गए। You carried my poverty. आपने मेरे गरीबी को उठा लिया Thorns were on your head. और कांटा जो आपके सिर पर रखा गया। Yes, now I am free from the curse. अब मैं श्राप से आजाद हो चुका हूँ। Can you say this every day? क्या आप हर दिन ये कह सकते हैं? Till Good Friday you say this, and I tell you, हो सकता है Good Friday के दिन आपकी सबसे बड़ी गवाही आपकी होगी. गुड फ्राइडे तक Hallelujah. आपको बोलते रहना है और नहीं, आपको नहीं, एक ही नहीं, दिन नहीं, आता है, नहीं, गुड फ्राइडे को आपकी गवाही सबसे बड़ी होगी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। ये वचन को लेना है. इस वचन को लीजिए। पढ़िए, पढ़िए। बोलिए, बोलना है। पढ़िए, पढ़िए। बोलिए, बोलिए। बोले कब तक बोलना है? जब तक बैंक बोलता है भाई साहब आपका सब मिट गया. क्या हो सकता है पास्टर? सर बहुत सारी गवाही हैं सर, अब सुनेगा तो बताऊंगा ना आपको. The last thing. आखिरी चीज, This is helping you, church. क्या आपकी मदद कर रहा है? 5 things I will share. 5 चीजें। Lastly, आखिरी, about Paul. पौलुस के बारे में। Go to 2 Corinthians 12. Let's get the word today. दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय। 2 Corinthians. Is the word blessing you, church? क्या वचन आपको आशीष पहुंचा रहा है? It's like the word will fill you, full of the word. 2 Corinthians. कोई लोगों को word नहीं चाहिए. बोले तुम सुना, हम सुनते रहेंगे. 2 Corinthians 12. दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। Verse 7. Hurry up, please. Sattva But those who are watching and you love the word, this for you. 2 Corinthians 12:7. Now, this is Paul the apostle. Who is this now? यहाँ पे पौलुस बोल रहे हैं। Paul the apostle. He says, lest I should be exalted above measure by the abundance of revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, to discipline me, lest I shall be exalted above measure. और इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। शैतान का दूत घुसे मारे घुसे मारे ताकि मैं फूल न अरे जाऊं। भाई तू किसको मार रहा है? Paul the apostle. प्रेरित पौलुस। Listen, this thorn which Paul was experiencing, Bible scholars say 3 things about that. और देखिए ये कांटा जिसके बारे में प्रेरित पौलुस अनुभव कर रहे थे, बाइबल के विद्वान इसके बारे में 3 चीजें बताते हैं। The first thing, पहला, they say it was a demonic power वे कहते हैं कि ये कोई शैतानी शक्ति थी to keep Paul under control. प्रेरित पौलुस को जो है नियंत्रण में रखने के लिए। Now please don't compare yourself with Paul. और देखिए अपनी तुलना आप प्रेरित पौलुस से मत करिएगा। My name is also starts with P, you know. मेरा नाम भी शुरू So होता है। something like, you know, I'm also from Paul's, you know, Paul's auntie, you know, from my village. No, shut up. नहीं, Paul was a man who was walking in the glory. और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो महिमा में चलता था। Come on, hallelujah. Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? So sometimes
more revelation, तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा प्रकाशन, you know, God can say, okay, I need to keep you in check. परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ। So, some Bible scholars say it was a demonic angel. और कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं कि ये कोई शैतानी दूत था। That's why the second thing they say, now we don't know. Sometimes the Bible says, the Bible scholars say, it was a sickness ये कोई बीमारी थी of the eyes. आँख की। That's why Paul writes, he says, with large letters I have written to you. और फिर इसलिए पौलुस, Oh, did you read that verse, please? तो मैंने Large letters. Why large letters? Because Paul could not see बड़े properly. बड़े शब्द में, क्यों? क्योंकि पौलुस अच्छे से देख नहीं पाते थे। He said this happened at the road to Damascus. When the light shone on him, you see, something happened to his eyes. और देखिए ये Oh, you know, come on. बाद पे जब वो जाते समय I'm giving बिजली you, चमकी थी, उनकी आँख में giving कुछ you हो गया था। stuff that you will not find on google.com. Jesus. And the third thing, इसी चीज, it was persecution. ये सताव था। Just persecution. Persecution. So now don't say, yeah, like Paul was at persecution. Huh? Even I'm persecution. No. समझ हो पौलुस को भी इतना। So these are the three things. तो ये तीन चीजें हैं, We don't know what it is. हम नहीं जानते क्या थी। But sometimes, कभी कभी here's the truth. सच्चाई को सुने, A thorn can be a demonic angel एक कांटा जो है कोई शैतानी दूत हो सकता है, that is in your family. जो कि आपके परिवार में रहा है। You see, people die. आप देखते लोग मरे, But वो चीज है ना, वो जाती रहती है। कितना समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? वो चीज कभी कभी जगह पर रहती है। वो चीज जगह पर रहती है। एक बार वो एक गवाही देने वाला एक व्यक्ति आया, तो पास्टर बोलता है मैं मेरी माँ की ठट्टा उड़ाता था, और वो रात को, मैंने टीचिंग भी दिया है उस पर एक नो, और रात को बोलता है मैं, मेरी माँ बोलती थी मीटिंग में आ, तो मैं नहीं आता था, और बोलता है दोस्तों के साथ, ये गोवा में हुआ था, ओके, बोलता है लोगों के साथ मस्त दारू वारू पी के, दारू शारू, यू नो, कम ऑन, हेलो, आयु देना, मस्त घूमता था गाड़ी पर, ओपन जीप में घूमता था, किधर खेत में, किधर लड़की घुमा, ये किया वो किया। दिस वाज हिज लाइफ, एंड हिज मदर वुड से प्लीज कम, और उसकी माँ कहती रहती थी मेहरबानी करके आओ, एंड ही वुड गिव good words for me also. Really? So माय म्हणतात तुका कितली गाळयो दिता तो. I said ते गाळयो पाठी वेतले जेसूच्या नावान. No, you don't understand? Never mind. So one day he came. तो एक दिन वो आया, He says मुझा पूत आइलो. He says my son is come. और वो कहने लगी मेरा बेटा आया है, Tall fellow. एक लंबा सा, He was like this. And he gave his testimony. और गवाही दिया, And here was the testimony. सुने गवाही। He said they were drunk. और कह रहे थे कि वो All of those fellows were drunk. सभी लोग पिए हुए थे, They were in the field. वो खेत में थे, मैदान He में। says suddenly they saw one big fellow come. और फिर अचानक एक बड़े व्यक्ति को आते हुए देखा उन्होंने, And it was coming towards that thing. He was like 8-9 feet tall. और वो विशाल 8-9 फीट ऊंचा, And that thing was coming. और वो चीज आ रही थी, And they had parked their car. और अपनी कार उन्होंने पार्क करके, And they were all sleeping in the car. और वे सभी लोग कार में सो रहे The fellow kicked the car. थे, और उस व्यक्ति ने कार को लात मारा, And this fellow was there. और ये व्यक्ति था वहाँ, He hit him on his back. और पीठ पे मारा, This fellow flew, it seems, somewhere. ये उड़ते जाकर कहीं गिरा, In the mud. You know, they मिट्टी have में। that. Come on, hello now. You know, soft mud. He's over there. And he saw that fellow. और उस व्यक्ति ने देखा उसे, It seems for 3 days. और कहता है 3 दिन He तक could not eat food because his hands were trembling. उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा That week we had our meeting in Margaon. था। और उस हफ्ते में हमारी सभा That time it was in Naveli. नावेली में हुआ करता था। Sorry, yeah. Let me just say the right thing because our Lord is here. Naveli, we had this meeting. नावेली में हमारी He सभा, was trembling. वो कांप रहा था, He said, Mummy, take me to the meeting fast. और वो कहने लगा कि माँ मुझे सभा में लेके जाओ जल्दी Now से। his mother is saying, Are Baba, it is on Thursday. No, he's saying, take me. Call this brother Michael, it seems. वो कहने लगा, So he's saying, Itla mo keso ailo re tuka. Hello, are you listening right now? Yes, sir. इतना प्यार कैसा आया तेरे को? बोलते हैं माँ बता मत, मैं बोले उसी को बताएगा. And he shared this story over there. और उसने उस कहानी को बताया, And that mother said, they call it a territorial spirit upon that place. उस जगह के जो इलाके पर अधिकार रखने वाली दुष्ट आत्मा, There are certain spirits that the family members die, you go away, but they remain in the house. कुछ ऐसी आत्मा, परिवार के लोग मर के चले जाते हैं, लेकिन वो शक्तियां उस घर में टिकी Every रहती। ancestral power that is not of God in your life today, let it leave you now in Jesus' name. तेरी शक्ति Open जो your mouth परमेश्वर and से pray आज आपके जीवन से निकल जाए, यीशु के नाम में अपना मुंह खोल के प्रार्थना in करें। the name of Jesus. That is why इसी वजह you से do the same things which your mother did. आप वही चीज करते जो आपकी माँ ने किया था। बताओ मत कि तेरे माँ ने क्या किया था, तुम वही चीजें करते हो कि तुम्हारे बाप ने किया था। बाप नहीं बोलेगा तुझे, बाप नहीं बोलेगा,
बाप नहीं बोलेगा। लेकिन मम्मी जो है स्ट्रगल करती है, बताने को स्ट्रगल करती है, बोले मेरी बेटी तो वैसे ही कर रही जैसे मैंने किया। घबराने की जरूरत नहीं, इस चीज को खत्म करो, तुम्हारे बच्चे सही रोड पे जाएंगे। हालेलुया। रेज योर हैंड एंड शाउट अ बिग हालेलुया राइट नाउ। चिल्ला हालेलुया इस समय।